Hello everyone, this is me Sangram and you are watching Career Adda with Sangram. So today in this video I'll explain about the complete roadmap of data science. So if you are a student and also if you are a working professional and you want to become a data scientist, you can just follow this roadmap, and also I'll provide you all the important resources in the description area so that after watching the video, if you want to pursue any of the roadmap option, then you can just check the description area. You can apply for the courses and you can build your profile as a data scientist. Okay, so now let's discuss about the eligibility criteria. So the people who watch YouTube or who have checked lot of the videos of data science related jobs, they must know that many people says that any graduate can become a data scientist. So this statement is not 100% true, but yeah, partially it can be true. ठीक है? So अगर आप student हो, then you should pursue these degrees to start your career as a data scientist directly. And if you are not from these degrees and you are pursuing any other degrees like BA, BCom, then you should start your career as a data analyst. And after 2 to 3 years of experience, you can become a data scientist. So that will be the overall roadmap of the data scientist. Okay, so what are the degrees which are required to start a job in a data science role directly? So BTech, BE, MTech, ME, MCA, and if you are doing BSc or MSc, it has to be under computer science, mathematics or statistics. And if you are doing BBA, MBA, then it should be under business analytics. Okay, so if you have this degree, then you can directly apply to the data science role, and also you can get a call back from the recruiter as well. Okay, now कौन सा skill आपको सीखना पड़ेगा? If you are following my job updates, I hope you have already seen what are the required skills to become a data science, to become a data scientist. ठीक है? So these are the most important skills, and these skills should be reflected in your resume. ठीक है? So first one is database management, SQL, NoSQL. Second one is advanced Excel. Third one is machine and deep learning models. Then next one is statistical analysis. Next one is a programming language. You can select any of the programming language. It can be Python, it can be R. And last but not the least is data visualization. So any tool you can learn, it can be Power BI, it can be Tableau. So these are the mandatory skills. These skills should be mentioned in your resume, and you have to become skilled on these things to become a data scientist. Okay. Now what will be the preparation strategy? Now I will take some time to explain this thing because सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है. अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके पास ज़्यादा टाइम है पढ़ाई के लिए, सो दे कैन एटलीस्ट गिव 4 to 5 hours अ डे. बट जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है उनके पास उतना टाइम नहीं है. 1 to 2 hours दे कैन गिव फॉर देयर स्टडीज. ठीक है, तो जस्ट design a overall strategy of 6 to 8 months, and the roadmap which you will prepare for yourself will be customizable. ठीक है, तो आपको बस ये सारा स्किल्स कवर करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर ओन रोड मैप. तो आपको आपका प्लान प्रॉपरली डिजाइन करवाना है, और आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे खत्म करें, एंड कैसे कौन सी चीज के लिए कितना ड्यूरेशन लेना पड़ेगा. ठीक है, तो आपका जो अवेलेबिलिटी है दिन में 1 घंटा 2 घंटा, उसके बेसिस में आई विल प्रोवाइड यू द रोड मैप. ठीक है, सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज स्टार्ट विथ एन इजी टॉपिक लाइक एडवांस एक्सेल एंड फिनिश विथ द हार्डेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक विच इज एमएल टॉपिक्स. तो अगर आप इजी टॉपिक से स्टार्ट करते हो तो आपके पास मोटिवेशन ज्यादा रहता है, क्योंकि इजी टॉपिक्स आपको आसानी से आ जाता है, तो आप बहुत जल्दी सीख जा सकते हो, तो उसके ऊपर आप जल्दी काम भी कर सकते हो. तो आपके पास एक मोटिवेशन बिल्डअप होता है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो कोर्स. तो अगर फास्ट में ही आप मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक ले लेते हो, तो बहुत सारा चीज आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा. तो यू विल फील डीमोटिवेटेड एंड यू विल जस्ट स्किप दोज पार्ट्स विच विल बी नॉट राइट फॉर यू. ठीक है,
तो जो इजी टॉपिक है उसको पहले पकड़ो एंड उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके टफ में घुसो। थर्ड वन इज स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स ऑन ईच स्किल। तो जो जो स्किल्स मैंने मेंशन किया है उसके ऊपर जब भी आप काम करोगे या फिर जब भी आप पढ़ाई करोगे उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना लोगे। तो प्रोजेक्ट एक तगड़ा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, बस एक माइनर प्रोजेक्ट चाहिए और या फिर मिनी प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें छोटा छोटा ऑपरेशन रहेगा। डेटा आप केगल से ले सकते हो एंड वो केगल का जो डेटा मिलेगा उसके ऊपर आप वो जो स्किल आपने सीखे हो तो वो स्किल अप्लाई करो एंड छोटा छोटा करके प्रोजेक्ट बिल्ड करो, जो आपका कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन बूस्ट करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो एंड ऑल्सो मेंशन दोज प्रोजेक्ट्स इन योर लिंक्डइन पोर्टल so that it will be also up to date and it will be visible for all the recruiters। ठीक है। फोर्थ वन इज मेक नोट्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज व्हाइल कवरिंग द टॉपिक्स। तो जब भी आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक का पढ़ाई कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग जितना भी इंटरव्यू क्वेश्चंस आ सकता है वो आप स्टडी कर लेना एंड ऑल्सो सम केस स्टडीज यू कैन फाइंड इन चैट जीपीटी। तो आप बस उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछो, आपको वो केस स्टडीज दे देगा एंड केस स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब रिक्रूटर आपको पूछेगा किसी भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर जब बात होगा तब आपको बुकिश लैंग्वेज का आंसर नहीं देना है, आपको एक केस स्टडीज देना है सो दैट रिक्रूटर विल ऑल्सो गेट सम आइडिया अबाउट यू कि आपके पास भी नॉलेज है इस चीज का। ठीक है, and last point is if you are a fresher try to do an internship in the final semester। तो इंटर्नशिप में आपको डेटा साइंस ही मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग या फिर डेटा एनालिसिस मिल रहा है उसके ऊपर भी आप कर सकते हो एक इंटर्नशिप, तो ये भी हेल्प करेगा आपको एक जॉब पाने के लिए। ठीक है, सो अभी आ जाते हैं कि स्टडी गाइड। तो स्टडी मटेरियल छोड़ अगर नहीं रहेगा तो प्रॉपर रोड मैप आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो पहले हम बात करेंगे सस्ता वाला स्टडी गाइड। सो दिस study material will give you all the skills and all the brand recognition, but ये आपको प्लेसमेंट नहीं देगा, प्लेसमेंट आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा लिंक्डइन से। सो आई थिंक इफ यू आर स्किल्ड यू कैन इजीली फाइंड अ जॉब बिकॉज नाउ डेटा जॉब्स आर वेरी ट्रेंडिंग इन द मार्केट। तो कौन सा कोर्स है? सो फर्स्ट वन इज फ्रॉम उडेमी। तो द डेटा साइंस कोर्स कंप्लीट डेटा साइंस बूट कैम्प 2025, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा ए टू जेड, आप ये कर सकते हो। सेकेंड वन इज फ्रॉम गूगल, गूगल डेटा एनालिसिस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ये एक्चुअली उस लोगों के लिए है जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है बट स्टिल डेटा साइंस करना चाहते हैं। तो मैं बोलूंगा कि गूगल डेटा एनालिसिस का जो सर्टिफिकेशन है वो करके आप एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब स्टार्ट करो। 2-3 साल के बाद आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो डेटा एनालिस्ट टू डेटा साइंटिस्ट। Then third one is from Stanford Online and the specialization is about machine learning specialization। बहुत तगड़ा कोर्स है ये, अगर ये कर लेते हो तो पूरा स्किल्स आपको आ जाएगा एंड एक अच्छा सा डिग्री भी हो जाएगा, लाइक ई सर्टिफिकेट आएगा आपको फ्रॉम स्टैनफोर्ड ऑनलाइन। ठीक है, एंड लास्ट वन इज IBM डेटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। तो ये 3 कोर्स आपको कोर्सेरा में मिल जाएगा, सारा कोर्स आपको 3-4 हज़ार के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप फॉलो कर सकते हो एंड इसमें पूरा डिटेल्स स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ कवर किया है। तो अगर आप ये कवर करते हो तो यू कैन इजीली कंप्लीट दिस थिंग्स विद इन 6 to 8 मंथ एंड बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। अभी सब बात कर लेते हैं एक स्टडी मटेरियल का जो थोड़ा महंगा है बट इसमें आपको स्किल्स प्रोजेक्ट के साथ प्लेसमेंट भी मिलेगा। तो दीज आर द लर्निंग पाथ्स, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक्स। तो थोड़ा महंगा है क्योंकि दिस कोर्सेस लाइज बिटवीन ऑलमोस्ट 2 to 4 lakhs। ठीक है, पर आपको 1 साल के अंदर एक प्लेसमेंट भी मिलेगा एंड जॉब गारंटेड प्रोग्राम है। सो फर्स्ट वन इज फ्रॉम अपग्रेड which is executive diploma in data science and AI। Next one is from Great Learning, वो भी master in demand data science skills, तो वो भी बहुत अच्छा है। थर्ड वन इज फ्रॉम सिंपली लर्न, तो ये भी एक यूनिवर्सिटी के साथ कोलाबोरेशन है एंड द सर्टिफिकेट इज प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन डेटा साइंस एंड जनरेटिव एआई। एंड लास्ट वन इज फ्रॉम इंटेलीपाथ जिसमें एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन दिलवाएगा in data science and artificial intelligence and this is also tied up with IIT रुड़की। ठीक है, तो ये सारा कोर्स थोड़ा महंगा होगा, सो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में सब कुछ होगा
एंड ये सब कुछ ऑलमोस्ट 8 to 12 मंथ्स का कोर्स है। तो अगर आप ये सब भी परस्यू करना चाहते हो तो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एरिया सो दैट यू कैन परस्यू एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। तो बस यही था ओवरऑल चीज। आपको बस ये समझना है कि डेटा साइंस के लिए कौन सा स्किल्स में काम करना है एंड वही स्किल्स आपको सीखना है एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को। एंड if you want to get regular job updates, don't forget to subscribe Career Adda with Sangram. Thank you for watching. Take care and bye.